दस्तगीर हैं, हम तो इसी लकीर के अब तक फकीर हैं। चाहे तो अपनी झोली से शाहों को भीख दे, या चाहे तो अपनी झोली से क्या बात शाहों को भीख दे। हम ऐसे बादशाह के दर के फकीर हैं। हमको सिर्फ बदनाम करना, इसको इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो। वो साहब इसका जापान का हिटलर ने, जर्मन का हिटलर ने ये कहा है कि झूठ को इतना बोलो, इतना सच लगे, वो सच लगे। तो ये आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है। इस कदर बदनाम कर दो, इस कदर बदनाम कर दो, तो ये अभी क्या बताया जाए आपको। भारत के आर्थिक और विश्ववादी राजधानी मुंबई कई कारणों से जानी जाती है। ये शहर जो करोड़ों को आश्रय देता है, जो सपनों की माया नगरी है, आज उसके सामाजिक ताने बाने पर एक दाग है। मुसलमानों की तरफ भेदभाव की भावना इस शहर के लिए एक शर्मिंदगी की वजह बन गई है। क्योंकि भारत की मुस्लिम आबादी के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के बारे में कोई प्रमाणित जानकारी नहीं है, इसीलिए जस्टिस राजेंद्र सचार के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी का संगठन 9 मार्च 2005 को किया गया था। इस कमेटी को इस विषय पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करनी थी। सचार कमेटी ने मुसलमानी संप्रदाय के हालातों की कड़वी सच्चाई पर रोशनी डाली थी। Tell me which Muslim family is being denied the right to education today? Is there any proven case of saying that these are the 10 families who applied for this admission to this college and they were denied because they were Muslims? Would you come across a case like that? मुस्लिम तो अच्छी स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा है। मैंने यहाँ 2-3 दिन पता किया, मैं मेरे लड़के को लाइसेंस यहाँ लेके आता हूँ। बोला म्यूनसिपलिटी है, तो मैंने म्यूनसिपलिटी मेरे को नहीं पढ़ाना, मेरे को प्राइवेट स्कूल जहाँ पे है उसमें मेरे को डालना है। तो बोले आपका पॉसिबल नहीं है। राजस्थान में मेरे लड़के ऑलरेडी अच्छा है, एजुकेशन मिल रहा है, लेकिन वो मैं बच्चे के साथ में नहीं रह रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे बच्चे भी यहाँ बहुत आए, मुंबई की लाइफ के हिसाब से वो एजुकेशन ले और पढ़े। जय हिंद does not care at all then for that. Whether he is a Muslim or he is somebody else, there is absolutely no discrimination. उनके सामने में सबसे बड़ा मसला आ जाता है माशी का, पैसे का। और पैसे के साथ साथ फिर वो अच्छा स्कूल में जाना चाहता है हमारा बच्चा, या अच्छी तालीम, तो वहां एडमिशन नहीं होता है उनका। तो ये गलती किसकी है? ये गवर्नमेंट की गलती है, हुकूमत की गलती है। पर मुसलमान भी मदद कर सकते हैं। मदद कितनी कर, मदद एक बार होती है, उसमें तो बहुत पैसे लगते हैं। और कई जन है मदद करने के लिए। मदद के लिए तो आलम ये है कि मतलब ये कि आप किस किस को मदद कीजिएगा। एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। As a progressive family, your father is willing to take loan from the bank and finance your education if he cannot afford it himself. Similarly, I'm sure that the same opportunity is available to everybody else in the society. Why should people not come forward? But there are give me one simple reason. The opportunity in this country is equal for everybody. If somebody does not take advantage of it, for some reason, I think the fault lies with the person himself or the family themselves. Why the cause is not given? The reason for it is never mentioned. But we know, because it is in public domain, that there are certain grey areas. And I used to earlier stay in Mumra. That is treated as grey area, negative area. So I was never given a credit card.
So why do you think People, from the executives from the banks, they keep on telling me, sir, you have a good status, you have a good designation, you have a good company, everything is fine. We have a little problem with the area of residence. I said that, so they would request that you please give some other address for the sake of formalities to be completed. I said that if I can change my area of residence, tomorrow you will ask me to change my name also. But what I always told the executives calling me, I said that there can be good people in bad areas and there can be bad people in good areas. Why don't you understand that? Giving out of the loan, basically the KYC documents. Okay. Know your customer. Know your customer. KYC means know your customer. If you are the existing account holder and if you are paying the taxes, your books of accounts are regular, so it will be easier for process of any type of the loan. Go to Pheasant Street, you will see Muslims. Go to any street in Bombay, you will see Muslims only. Why? A lot of educated people are doing business on the streets just because they are not getting jobs. See, Muslims have yet to make a lot of conscious effort to come into the mainstream. I find that a large number of Muslim boys are very averse to learning the local lingo. In the government, everything is done in Marathi. So unless they learn the local lingo, they will not be able to become a part of the mainstream. A large number of the Muslim population send their children to madrasas. I have nothing against the religious education per se. But I think along with the madrasa education, they have to come into the mainstream. मदरसा में पढ़ने के बाद बच्चा वो अपनी माशी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता है। मदरसा में जाता है सिर्फ इस वजह से मजहबी चीज को सीखने के लिए, एक मजहबी तालीम क्या है उनका। अब उसमें जो ज्यादा शौक होता है जिनको, वो मतलब आखिर तक पढ़ता है। लेकिन अभी जैसा कि बिहार में भी मदरसे ऐसे खुले हैं, यूपी में भी ऐसे खुले हैं कि दोनों तालीम साथ में है। इलाहाबाद बोर्ड के नाम पर, बिहार में अपना पटना बोर्ड के नाम पर, तो वो उनको वही टीचरी वगैरह की सर्विस, जो उर्दू टीचर की खपत है, वो भी मतलब 2%। अच्छा, उससे एक नुकसान भी है। उससे एक नुकसान ये हुआ कि जो बच्चा स्टूडेंट हमारा बहुत टैलेंट था, वो साइंटिस्ट बन सकता था, वो डॉक्टर बन सकता था। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि डॉक्टर तो बनेंगे हम वहां तक जाएंगे, 12वीं के बाद मेडिकल में हमको एडमिशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट में ले नहीं सकते, तो उन्होंने अपने को वहीं रोक दिया। इससे देश का भी, कौम का भी बहुत बड़ा नुकसान है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कि महाराष्ट्र के कैद खानों में महाराष्ट्र के मुस्लिम पॉपुलेशन की निस्बत से, इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स इन महाराष्ट्र, they are in minority as far as the population is concerned, but they are in majority as far as prison population is concerned. मुसलमानों की तादाद हिंदुओं की तादाद से लगभग ज्यादा है उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से। इसकी कई वजूहत हैं। इसकी वजूहत यह है कि why is this prison population of Muslims has grown? A, out of frustration, desperation, unemployment, illiteracy, some Muslim boys have taken to crimes. Small crimes like chain snatching, pickpocketing, stealing, robbing, etc., etc. This is one reason. But this is not the only reason. This can only contribute a bit. And number two is that several Muslims are the victims of biases. And they are arrested without evidence, without their involvement in crime. This is very serious. That needs to be identified. Thirdly, several Muslims are languishing in prison because there is none to give them legal aid,
there is none to extend assistance for the purpose of their enlargement, giving them surety. कई लोगों को बेल हो चुकी है लेकिन फिर भी अंदर पड़े हैं. गरीब लोग हैं, मुसलमान गरीब हैं. Father used to say is that engineer boy, he was tortured in custody. He was forced to write confession, which he refused. He said, "I am not going to do confession." He was tortured up to the great extent. He vomited the blood, and subsequently he died. After his death, his body was vanished from the place, and it was burned and torn off. And every agency was involved there. Even the government also was involved over there. Most constables are naturally inclined to believe that Muslim boys are thieves and criminal. They never question their beliefs on that. And I don't know if the police force does any kind of sensitization. Most of them who were owing allegiance to Shiva Sena or who were owing allegiance to RSS and such other Hindu right-wing mindset, they need to be corrected. We are in a very piquant situation, the police especially. Whether it is a group of Hindus and Muslims, there is a deep-rooted lack of faith somewhere, yes. But in any situation, even if there are two Hindu groups fighting with among themselves, I am supposed to take some legal action. The moment I take both the groups feel in their own right that they are right. And the moment I take action against one group, that group turns against me. The enforcer always will never be anybody's favorite. पुलिस एक इंस्ट्रूमेंट है, सरकार जो कहती है वो पुलिस करती है. ऐसा भी देखने में आया, बहुत ऐसे इलाके आए हैं कि मुस्लिम आबादी बेल्ट है, तो उस इलाके को इस वजह से नजरअंदाज कर दिया गया है कि चूंकि इसमें मुस्लिम बसते हैं. लाइट नहीं है वहां, पानी नहीं है वहां, सड़क नहीं है वहां. यानी आपको ये महसूस होगा ऐसे इलाके में पहुंचने के बाद कि हिंदुस्तान के हम उस पीरियड में भी हैं, मुगल पीरियड से भी आगे. ऐसा क्यों, किस लिए? They don't want to do the thing for the Muslim minority. Simple thing. If they want to do it, they can do it. And nobody is there to force them to take the thing on the table. The most painful thing is that whatever our community people are there in the parliament or in the assembly, they are not forcing government to table the report and discuss and give remedy for that. Nobody is there. That's why they are not doing anything. And they want that the community should be slave. They should be slave only for all the time. Day by day, the position is going worse to worse. Now we are worse than the Itna. But government, nothing. They are admitting in the paper, okay, yeah, the things are not proper. Today's paper is there. The status. Where is this? Government plus ever benefited Muslim much. What is this? Today's paper. So 65 years it is going on like this only. मुसलमानों की हालत बहुत खराब है. नहीं, गवर्नमेंट ने हालात खराब तो जान लिया और उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उस पर अमल कुछ नहीं किया. मनमोहन सिंह की सरकार ने फिर माइनॉरिटीज के हालत, मुसलमानों की हालत खासतौर से देश में क्या है पता लगाने के लिए पैनल बनाया और उसने पूरे देश में जाकर के मुसलमानों के हालात मालूम किए. इकोनॉमिकल, सोशल, एजुकेशनल, everything पता किया. At least fortunately it came into existence thanks to Manmohan government that they appointed him and he gave boldly a report
which has exposed the sad state of affairs. But it hasn't been implemented It yet. has not been implemented because people, they are all vote bank politics and Hindu support and whatnot. हमारा देश जिसका नाम भारत है, मैं इसे हिंदुस्तान कहता हूं। जो भाई अपने को हिंदू समझता है उसका धर्म है कि वो शिवसेना को वोट दे, और ये जो शिवसेना है ये हिंदू सेना है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, तो आपका वोट सिर्फ शिवसेना को ही आना चाहिए। दोस्तों मेरे साथ जोर से कहो, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, भारत माता की। हमको लगता है कि हम बोलेंगे हम गर्व हमको है कि हम हिंदू हैं, हमको लगेगा कि हम गर्व कर रहे हैं। अब मुसलमान भाई अगर हिंदू हैं, हिंदुस्तान के लिए कुछ बोलते हैं या हिंदुत्व दिखाते हैं तो हमारे साथ में, जब वो नहीं दिखाते तो उनको हमको अलग ही करना पड़ेगा। जब चुनाव हुए, नतीजे आए और सारा नक्शा सामने आया तो परेल और लालबाग में 78% पोलिंग हुई और नागपड़ा और मदनपुरा में 28% पोलिंग हुई। कैसे जीतेंगे? 72 out of every 100 Muslims don't bother that what is their future. So I said to hell with it, क्या करें? तो हम लोग जीत के आ नहीं सकते। हमारे पास वो गुंडा फोर्स और पैसा और शराब और बांटना और ये वो सब नहीं है। कहां से जीतेंगे इलेक्शन? ज्या वेळेला देशावरती ज्या वेळेला गंडांतर आलेली आहेत, आक्रमण झालेली आहेत, त्यावेळेला आपला महाराष्ट्र उभा राहिलेला आहे। शिवराय नसते तर सगळ्यांची सुमता झाली असती। जब न होत शिवाजी तब सुन्नत होत सबकी। हमारे इधर तो हमारे संस्कृति को बढ़ावा दे रहे, हम लोग उनके संस्कृति को थोड़ी नीचा गिरा रहे। हम हमारी संस्कृति को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उनको थोड़ी गाली दे रहे। कुछ हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू है, तो हम उनको थोड़ी गाली दे रहे, उनके थोड़े अपशब्द यूज नहीं कर रहे। ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड बाय द ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। अपने रिपोर्ट में लिखते हैं नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। देखिए ऐसा है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। यदि एक आदमी आकर ये कहता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, एक आदमी कहता है कि राम की कसम खाते हैं मंदिर नहीं बनाएंगे। Our presentation is zero there. So unless and until we go there, we recruit ourselves over there, without that we will not get our rights. Because जब तक के माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, जब तक के बच्चा होता नहीं। हम इस देश की पांचवा हिस्सा है। अगर एक इंसान को 5वें हिस्से सर से काट दिया जाए तो आदमी मर जाएगा, नीचे से काट दिया जाए तो लंगड़ा हो जाएगा, बगल से काट दिया जाए तो लूला हो जाएगा। तो 5वें हिस्से को अगर आज इस देश के अंदर मार्जिनलाइज करके उसको राइट नहीं मिलेगा तो ये देश तरक्की नहीं कर सकता। इस देश की तरक्की और डेवलपमेंट के लिए मैं कहता हूं कि देश के रहने वाले मुसलमानों को भी उसका हक मिलना चाहिए। We Muslim are at least 25% of the population, whatever information we have. But they say we 17 or 18%. They say like that, the census. But actually, in real sense, the Muslims are 25% of the population. So at least we must get representation percentage-wise. 25%. Okay, not 25%. You say 17%. Okay, 17%. If you think 70%, so we must get 70% share. फिल्म में देखिए शाहरुख खान इज मुस्लिम, नंबर 1 पे बैठा है, मगर किस काम का? पॉलिटिकल लीडर्स में हमारे पास हैं, सलमान खुर्शीद है, गुलाम नबी आजाद है, फला है, यूनियन मिनिस्टर रहमान बड़े, क्या करते? कोई कुछ काम करे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमश कबीर, बोलने के लिए तो ये सब है। देखिए आपका चीफ जस्टिस बैठा है, देखिए आपके माइनॉरिटी कमीशन बैठे हैं, देखिए आपके कई जजेस मुसलमान हैं, देखिए आपके मुसलमान कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वाइस प्रेसिडेंट मुसलमान है। मगर भाई ये सबके हाथ बंधे हुए हैं, ये सब ना मुंह खोल सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं।
मुसलमानों का सामाजिक और राजनैतिक अलगाव एक गहरा और पेचीदा तथ्य है। हालांकि मुसलमानों की तरफ से कई अनगिनत कोशिशें की गई हैं, परंतु वो सब नाकाम रही। सरकार ने भी इस मुद्दे का कोई सकारात्मक समाधान नहीं ढूंढा है। एक शेर सुनो तुम और मजा आ जाएगा, और गुफ्तगू इसमें खत्म। गैरों से सुना तुमने और गैरों से कहा तुमने, अरे कुछ मुझसे सुना होता, मुझसे कहा होता। मेरी बात मुझसे कहिए, मुझसे सुनिए आप। आपने जो तीर चलाया तो कोई बात न थी, हमने जो जख्म दिखाया तो बुरा मान गए। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। मजलूम हैं हम लोग, लेकिन फिर भी हंस के जी रहे हैं और जिएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मददगार जो है वो पूरी कायनात को बनाने वाला अल्लाह है। हमारा ये पूरा